मैंने उन लोगों के साथ फिल्म बनाई है जिन लोगों के साथ मैं बॉम्बे आया, और हम लोगों ने सपने देखे थे कि हम एक फिल्म बनाएंगे, एंड फाइनली वो हो रहा है। एंड समीर सक्सेना जो डायरेक्टर है, एंड विश्वपति सरकार जो राइटर हैं, उन दोनों की पहली फिल्म है। और आई एम ग्लैड कि मैं उनकी पहली फिल्म का पार्ट हूँ। आई एम रियली ग्लैड। In the weekend of underwhelming Hindi projects in theatres, I was really taken aback by all the negative reviews that I was reading about the project Jadugar starring Jitendra Kumar, a film written by Biswapati Sarkar and directed by Sameer Saxena. This film marks a great journey from the digital space on YouTube to the mainstream and big leagues for talents behind and in front of camera. What was happening before I got to watching Jadugar was reading a lot of articles dismissing it as incoherent and shallow, but then I started to wonder, is it any different from what the trailer promised? Wasn't the film meant to be a breezy, laid back, enjoyable watch for a bunch of misfits and underdogs to fight for an inconsequential football title? Was it pretending to be deeper or different than just that? Why was it being dismissed so vehemently as so uninspiring and forgettable? Was it due to the track record of TVF and how they consistently do so well when one misses the mark even slightly, it's considered to be a complete train wreck? Irrespective of the notion that was set of how the film's quality is, I tuned in for the movie, and what was extremely refreshing about everything that transpired was that it was exactly what I expected it to be. Light-hearted fun, nothing more and nothing less. The film, focusing on a football-loving town Neemuch in Madhya Pradesh, followed the journey of Meenu, a magician who consistently and in brisk fashion falls head over heels for the new eye doctor in town, Disha, played by Arushi Sharma. An uninspired Meenu who has no interest in football is given the monumental task to do a magic trick if he wants to be considered worthy of this union with Disha. This involves getting his team to the finals of the football tournament. The several revelations of people's origin story, their love and apathy towards the sport, and how it all manifests into realizing one's character and goals forms the basic storyline of this humble, simple, and honestly heartfelt film. Of course, I can sit over here and debate about how this film could have cut down on its running time. Javed Jaffri's stammer could have been more authentic rather than coming in and out as he pleases. The film probably went overboard with respect to Meenu's magic manipulating the football games at hand, but did it absolutely butcher my experience of watching this film? Not at all. This journey of Meenu contemplating about his selfish wants and needs and evolving to understand a world beyond his magic is something that I was invested in. I fell in love with the supporting cast, especially of this film. We had Raj Kushal as Lalli and his hilarious comic timing, the most capable player Deepa, played by Rashka Panwar, or even the left-handed unfit goalkeeper. There was such an organic quality to the interaction among these misfits in the same team. Arushi Sharma had the best track, by the way, if you remember, with Kartik Aaryan in Love Aajkal 2. And as Disha, she showcases another confident performance, making you also come to the conclusion that outsiders like her have no other option but to keep on going and proving themselves until the next opportunity. Javed Jaffri is slightly inconsistent with his performance, yet really shines in the emotional moments. Manoj Joshi as Disha's father, and the moment that he shares with Disha as they watch Meenu's magic show really made me emotional. Jitendra, being his carefree and casual best, has a formidable and confident presence in front of camera. Even though you can create parallels with his character in Chaman Bahar, I feel like a journey away from the likable underdog will be a breath of fresh air for his audience as well. Never did this film get overbearing with its emotional depth or messaging, but seemed like a breeze, and that's something I feel they intended to do. Jadugar is in no way a knockout film compared to many TVF's projects, but is it a disaster in every shape and form? Does it require the absolute disdain that it is getting from publication houses? Does it really deserve to be panned unanimously? I think otherwise. And looking at the reactions and almost vociferous anger that it was getting from publications, I thought of reaching out to Jitendra and the Netflix team to understand why he said yes to the film, how his journey has been, what creatively stimulates him, and more importantly, what they intended to be the takeaway from a carefree and fun, harmless film like Jadugar. Hello, Jitendra. Thank you so much for first of all giving us time. You've been a channel favorite और बहुत request हुआ है कि आपके साथ एक interaction हो, तो thank you so much for coming. Thank you so much, Anmol, for having me. Thank you. So first of all, congratulations on जादूगर on Netflix. मुझे आपसे पहला सवाल ये पूछना था कि मुझे लगता है कि एक डाइकोटमी हो सकती है, एक है कि बिस्वपति सरकार राइटर हैं, तो और आपके पास उनके साथ इतनी बड़ी हिस्ट्री है,
उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलो, या फिर आपको कुछ अलग करने का मतलब कि स्कोप मिल रहा है मीनू के कैरेक्टर के साथ? दोनों में आपका क्या था ट्रिगर हाँ बोलने का? आई थिंक बिस्सो का बहुत बड़ा हाथ है मेरी पूरी जर्नी के दौरान। आई थिंक जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ एटलीस्ट मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ कि ये स्क्रिप्ट है, कैसी लग रही है, इस तरह की कहानी मुझे मेरे पास आई है, तो आपको कैसी लग रही है। मतलब कोई बाहर का प्रोजेक्ट है तो भी, एंड स्टिल मतलब ऑफ कोर्स बिस्सो अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अगर मेरे लिए कुछ उनके लिए उनके पास है तो डेफिनेटली बता देते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर इस तरह का है, इस तरीके से जा रहा है, एंड यू शुड डू इट। किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, मेरे पास जो भी चीजें आती मैं एटलीस्ट एक बार कंसल्ट उनसे करता हूँ कि यार यहाँ से प्रोजेक्ट आया है, इस तरह की कहानी है, शुड आई डू इट और नो नो। तो वो काफी एक अच्छी हेल्प होती है मेरे लिए भी, एक अच्छा एक और ओपिनियन मिल जाता है। और मुझे ये लगा कि स्पेशली जितेंद्र, मतलब कि मैंने जो भी आपका करियर स्पेशली देखा है डिजिटल में, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, ये मिसफिट और अंडरडॉग स्टोरी पे जो कैरेक्टर्स होते हैं, आप क्या नेचुरली कनेक्ट करते हैं इन कैरेक्टर्स के साथ? नहीं, आई थिंक जो स्टार्टिंग से जो जिस तरह के रोल्स हैं वो अंडरडॉग रहे कुछ रोल्स, तो हम्म। वो लोगों में अच्छे से कनेक्ट किए, लोगों को उसमें ज्यादा मजा आने लगा। तो जो और अंडरडॉग स्टोरीज मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी हैं, और बहुत अलग अलग वर्ल्ड में अंडरडॉग्स होते हैं, बहुत अलग अलग स्पेस में अंडरडॉग्स होते हैं। लाइक मतलब इफ यू टॉक अबाउट पिक्चर्स तो वहां पे अलग तरह के लोग हैं और वो वर्ल्ड अलग है। इफ यू टॉक अबाउट लाइक शुभ मंगल ज्यादा सावधान, और इफ यू टॉक अबाउट लाइक चमन बहार, और इफ यू टॉक अबाउट पंचायत और लाइक दिस जादूगर, तो अलग अलग वर्ल्ड है, अलग अलग कहानी, अलग अलग कैरेक्टर के अंडरडॉग्स हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि एक तो स्पेस बहुत है हम्म। एक्सप्लोर करने के लिए फॉर एन एक्टर और राइटर्स के लिए भी, कि हाँ नई नई कहानी आपको मिल सकती है। तो और वो ऑडियंस के साथ जिस लेवल पे कनेक्ट करती है अंडरडॉग वाली चीज, वो मुझे लगता है कि काफी इंस्पायर करती है हमें भी, कि हमें और कहानियां ऐसी बतानी चाहिए। मुझे ये लगा कि जितेंद्र, स्पेशली ऑन सेट नाउ, यू ओन्ड इन ऑन द रोल ऑफ अ फुल टाइम एक्टर, और मैं जब से आपका करियर देखते आ रहा हूँ, मुझे भी ये भी पता है कि आप बिहाइंड द सीन्स इतने इन्वॉल्व थे टीवीएफ की जर्नी में। कैरेक्टर्स कैसे प्ले करेंगे, शूट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, बिहाइंड द सीन्स आपका बहुत बड़ा रोल था। तो ये एडजस्टिंग प्रोसेस कैसे रहा है आपका कि यू हैव टू बी हैंड्स ऑफ एंड पीपल विल डिक्टेट कि आपका कैरेक्टर कैसे प्ले होना चाहिए, वर्सेस यू नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैड सो मच कंट्रोल कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बाहर जाएगा? तो ये एडजस्टिंग प्रोसेस कैसे रहा है? आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और जिस चीज की आप बात कर रहे हो ये मैंने कॉलेज में ही सीखी थी। मतलब मैंने बॉम्बे में आने के बाद कुछ ऐसा राइटिंग वाइज या डायरेक्शन वाइज कुछ किया नहीं है, बट मैं कॉलेज में मैंने प्लेज लिखे हैं और मैंने डायरेक्ट किए हैं, या मैं मतलब जो क्रिएटर टीम है उसमें मैं इन्वॉल्व रहा था कॉलेज टाइम में। सो आई नो कि मतलब एक एक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बाहर से अगर मैं देखूं, और एज अ क्रिएटर मैं देखूं, तो एक्टर को किस तरीके से अपने कैरेक्टर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए रादर देन कि हाँ मतलब पूरा प्रोसेस कैसे जा रहा है, और उसको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल रहता है डायरेक्टर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, कि वो अपनी चीज पे फोकस करे और जो पूरी टीम है वो अपने अपने कामों पे फोकस करे, तो बहुत स्मूथली चीजें होती हैं। तो ये मैंने बहुत अपने लाइक मतलब बहुत छोटे लेवल पे लेकिन बहुत जल्दी सीख लिया था। और ये मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी सीखा है, नॉट लाइक किसी स्कूल से या किसी अच्छे टीचर से, मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, आई एम वेरी अनट्रेंड एक्टर। जो भी सीखा है जो टीवीएफ के दौरान जो 7-8 साल की जर्नी रही उसी में सीखा है। एंड आई एम रियली लकी कि उस टाइम पे यूट्यूब था और टीवीएफ बना, और उन सारे स्केचेस का, उन सारे वेब शोज का, अच्छी कहानियों का, जिस तरह की कहानियां हम कहना चाहते थे उनका मैं पार्ट था। यही जितेंद्र, मुझे लाइक पता करना था ऑफ योर माइंड स्पेस ऑफ दिस जर्नी सो फार कि there's one digital space where the company and your identity with them mastered the connection with the audience. That connection I feel like वो मतलब कि इतना मतलब कि strong है कि टीवीएफ जब भी कुछ निकालता है, आपको पता है कैसे ऑडियंस रेजोनेट करेगी उसके साथ। वेयर एज इट्स स्टिल अर्ली डेज अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट में अपने आप को सिर्फ एक एक्टर के हिसाब से देखोगे, तो ये बैलेंसिंग एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे भी जाके, दैट यू डिप योर फीट इन बोथ। मुझे लगता है कि हाँ, अगर स्टोरी अच्छी, अगर कैरेक्टर अच्छा लगा मुझे और मजा आया, पूरी कहानी, पूरे जो उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया उस स्पेस में मुझे अगर मजा आया, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि ये ओटीटी स्पेस में कर रहे हैं, या एक यूट्यूब शो बना रहे हैं, या फिर एक फिल्म बन रही है, या फिर एक ओटीटी फिल्म बन रही है, या फिर एक थिएट्रिकल फिल्म बन रही है। तो वो बहुत ही सेकेंडरी थॉट है। पहला ये है कि हाँ मतलब
जो बनाने वाले हैं, क्रिएटर्स हैं, वो कितने दिल से उन्होंने वो कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझ तक पहले पहुंच रही है कि नहीं। फिर मैं बात का सोचूंगा, मतलब ऑडियंस पर्सपेक्टिव थोड़ा लेट आता है कि ऑडियंस को कितना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, वो प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड वो नहीं कर पाओगे प्रिडिक्ट। और अगेन जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तुमसे या किसी पर्टिकुलर क्रिएटर से, वो भी फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट है। वो फुलफिल करने जाओगे तो मुझे लगता है कि हाँ, तुम थोड़े से तुम्हारे रास्ते डगमगा सकते हैं, तुम थोड़ा सा स्टोरी से दूर चले जाओगे कि अरे हाँ, ऑडियंस को ये पसंद है तो हम ये बनाते हैं। अगर वैसी चीजें नहीं हो रही हैं और कहानी मुझे पसंद आई है, मुझ तक कन्वे हुई है थ्रू द मेकर टू द डायरेक्टर, तो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है कि वो कहाँ पे, उसका प्लेटफॉर्म, उसका मीडियम क्या होगा, मेरे लिए सेकेंडरी होगा। दिस होल थिंग फैसिनेट्स मी अ लॉट, क्योंकि मेरे हिसाब से पब्लिक परसेप्शन एक है कि जितेंद्र ने बहुत नाम कमाया है अपने कैरेक्टर्स के साथ, द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डन। मुझे आपसे पूछना था इफ यू कैन बी रियल अबाउट ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ, do you still audition for roles where movies are concerned? Is it still casting directors typecasting you as a certain type of actor? What is the ground level reality of like how you're seeing Mumbai and roles and sort of the career right now? हाँ, मतलब लाइक इनिशियल डेज में यस, मतलब बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे एंड बहुत कम क्रैक हुए। एंड जो भी क्रैक हुए, थैंकफुली वो अच्छी स्टोरीज थी उनका मैं पार्ट रहा हूँ। एंड या अभी अभी लाइक मतलब मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, बहुत सारी फिल्मों की या सीरीज की स्टोरीज आ रही हैं। आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड ग्रेटफुल कि ये हो रहा है जो मैं करने आया था। और हर तरह की कहानी आ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ स्मॉल टाउन की स्टोरीज आ रही है मेरे पास। मतलब जो बड़े शहरों की कहानियां हैं या डिफरेंट स्पेस है, जो फैंटेसी वर्ल्ड है, या लार्जर देन लाइफ जो हम कहानियों को देखते हैं, थिएट्रिकल जो बोलते हैं, तो वो सारी कहानियां, हर तरह की कहानियां मुझे अभी आ रही हैं। और वही मैं धीरे धीरे वो भी सीख रहा हूँ कि क्या किस तरह से मुझे चूज करनी है कहानी। तो ये एक नई चीज है मेरे लिए कि ज्यादा कहानियां हैं और मुझे कम चूज करनी है। तो होपफुली ये भी मैं ठीक से कर पाऊँ, और यही बैलेंस करना सीखना है, और यही मेरे लिए सक्सेसफुल जो मतलब सक्सेस का पैरामीटर है कि मैं इस चीज में मतलब सक्सेसफुल हो पाऊँ कि अपना काम ठीक से कर रहा हूँ जैसे मैं करते आ रहा था, और जिस तरह की कहानियां मैं अभी तक कहते आ रहा हूँ उसी तरह की कहानियों का उसी डेडिकेशन लेवल पे मैं काम कर पाऊँ विद द टीम। मुझे भी ये लगा कि नहीं, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव दैट यू हैव मोर ऑफर्स एंड देन यू कैन बैलेंस द सेम। मुझे याद है शुभमंगल ज्यादा सावधान की रिलीज से पहले आप कह रहे थे कि हम ना 2014-15 में ही स्टडी कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स इंडिया में आएगा, और देखना लाइक देयर विल बी अ मैरिज ऑफ आवर टैलेंट एंड आवर टेक्नीशियंस विद देम। एंड ऐसे लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट कर दिया है, आपने नेटफ्लिक्स के साथ इतने सारे कोलैबोरेशंस किए हैं। how is this marriage so important in distribution of say projects like Jadugar? And I feel like you predicted it. हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग बहुत बहुत आई थिंक बहुत पहले से नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक जब कंट्री में भी नहीं आया था तब भी हम बाहर वाला नेटफ्लिक्स देख रहे थे कुछ कुछ करके। तो तो वो हमने देखना शुरू कर दिया था। हमको लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और हमारे पास कम टाइम है जब हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें करेंगे, और मतलब तो और जल्दी ये चीजें टेक ओवर करने वाली है। तो वो हमने प्रिडिक्ट किया था। एंड मजेदार रहा विद नेटफ्लिक्स, और बहुत जरूरी था कि इस लेवल की रीच हो किसी प्लेटफॉर्म की, और वो हमारा कंटेंट उस रीच तक पहुंचा पाए। क्योंकि हमेशा से हम फिल्म्स करने आए थे, मतलब हमने जब सोचा होगा कि एक्टिंग करने चलते हैं या फिल्म्स बनाने चलते हैं, मतलब कोई कहानी बताने चलते हैं, तो एक ही मीडियम था कि फिल्म्स में बताएंगे। एंड उस टाइम पे डिजिटल जैसा कुछ था नहीं। थैंकफुली हम आए और यूट्यूब जर्नी रही, और वेब वर्ल्ड बन गया, डिजिटल वर्ल्ड बन गया, एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बन गया समहाउ। पर ऐसा पता नहीं था। तो यही था कि फिल्म्स की रीच बहुत ज्यादा है। हर मतलब इंडिया में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट आई थिंक फिल्म्स में जाना है। कि आप फैमिली के साथ, मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आज कहाँ जाएं, आज क्या करें, तो बहुत ही सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि जाके कोई अच्छी फैमिली फिल्म देखते हैं और एंजॉय करते हैं विद किड्स एंड विद फैमिली, विद पेरेंट्स। तो वो वाला जो कल्चर है, तो उसकी रीच बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक जो हम कर रहे थे उसकी रीच बहुत लिमिटेड थी। मतलब ऑफिस गोइंग जनता या कॉलेज स्टूडेंट्स, ये लोग हमें देख पा रहे थे, और इन लोगों की फॉलोइंग थी पहले। आई थिंक नेटफ्लिक्स ने या ओटीटी ने, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने वो घर घर तक पहुंचे। एंड इट हैपेंड व्हेन टाइम्स
times were not right when COVID was there. So ये उस टाइम पे हुआ कि लोगों ने OTT को और अच्छे से एक्सप्लोर किया, क्योंकि सब लोग घर पे बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हम लोगों के पास. तो आई थिंक वो टाइम था कि OTTs बहुत अच्छे से इवॉल्व हो गए हमारे घरों में और एक बड़ा पार्ट बन गए हमारी लाइफ का. Koda Factory and Panchayat have connected you with youth and the family audience, so it's been the best of both worlds and it's only onwards and upwards. Lastly, I wanted to ask you, आपको like with Jadugar, what is like, say, the takeaway that you would want a person tuning in for Jadugar? Like, what should they take away from a story like this? एक जर्नी है कि एक कन्विक्शन वाली जर्नी है कि हमें कैसे कन्विक्शन होना चाहिए अपनी लाइफ में, जो चीजें हमारे अराउंड हो रही हैं, मतलब जो हमें चाहिए होता है, अगर हमें उसमें कितना, अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो हम उस चीज को कैसे अचीव करते हैं. तो कहानी उसके बारे में. और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है. इट्स नॉट अ प्योर स्पोर्ट कॉमेडी और इट्स नॉट प्योर मैजिक स्टोरी, इट्स नॉट प्योर रोमांटिक कॉमेडी. ठीक है. So it's a film, it's a story with lots of complex things and lots of things like romance, magic and sports. And ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज देखने जा रहे हैं. तो आई होप कि ऑडियंस को बहुत मजा आएगा इस फिल्म में. एंड बहुत प्यार से फिल्म बनाई है. एंड मैंने उन लोगों के साथ फिल्म बनाई है जिन लोगों के साथ मैं बॉम्बे आया, और हम लोगों ने सपने देखे थे कि हम एक फिल्म बनाएंगे, एंड फाइनली वो हो रहा है. एंड समीर सक्सेना जो डायरेक्टर है एंड विश्वपति सरकार जो राइटर हैं, उन दोनों की पहली फिल्म है. और आई एम ग्लैड कि मैं उनकी पहली फिल्म का पार्ट हूँ. आई एम रियली ग्लैड. और आई होप ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी इस फिल्म. I hope for the same, Jitendra. It is a beautiful story. और मैं आपको ये भी पर्सनली कहना चाह रहा था कि आपकी सारी पर्सनल विंस लॉसेस हमारी ऐसी पर्सनल विंस और लॉसेस लगती हैं, बिकॉज वी फॉलोड यू फॉर सो लॉन्ग. एंड आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू अनमोल, थैंक यू सो मच. Thank you, लवली टॉकिंग टू यू. Thank you.